Okay, so I want to talk to you about the work of the Holy Spirit तो पवित्र आत्मा के काम के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ in the life of a believer. एक विश्वासी के जीवन में। Okay, now, first of all, who is this Holy Spirit? पहली बात, पवित्र आत्मा है कौन? Yeah, Jesus said, यीशु ने कहा, I'm going to send you another helper, मैं तुम्हें एक दूसरा मददगार भेजने वाला हूँ। just like me. वो मेरे जैसे ही है। A helper will come. एक मददगार आएगा And as soon as he comes, और जैसे वो आएंगे, your failures will turn into victory. तुम्हारी जो हार है वो विजय में बदल जाएगी। Your sickness will bring cancelled, healing will come. बीमारी रद्द की जाएगी और चंगाई आएगी। Yeah, you will no more live for yourself. अब खुद के लिए नहीं जियोगे, You will live for Jesus. यीशु के लिए जियोगे, You will live for others. दूसरों के लिए जियोगे। You will make a difference wherever you go. आप फर्क लाओगे जहां भी जाओगे। So my prayer is तो this. मेरी प्रार्थना ये है, When you die, जब आप मरोगे ना, you should be able to say, तो आपने ऐसा कहना चाहिए, I fought a good fight. मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, I finished my race मैंने मेरी दौड़ पूरा किया and I've been faithful. और मैं विश्वास योग्य रहा हूँ। So now I want to talk to you about this helper first. तो ये मददगार के बारे में मैं बात करना So चाहता who हूँ। is the Holy Spirit? तो कौन है पवित्र आत्मा? Simple. बहुत आसान He है, is God. वो परमेश्वर है And He is inside you. और वो आपके अंदर है, He is with you. आपके साथ है। Right now, इस वक्त He is alive वो जिंदा है and He is inside और you. तुम्हारे अंदर है। Right now, इस वक्त He is alive वो जिंदा है and He is amongst us. और हमारे बीच में भी है। Okay, so who is the Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा कौन He है? is God. वो परमेश्वर है। Acts 5, प्रेरितों के कार्य 5 verse 3 and verse 4. वचन 3 और 4। Okay, now if you look at both these words, अगर दोनों वचनों को देखोगे, it tells us वहाँ लिखा है that the Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा परमेश्वर है। Can I hear an amen? Amen। So the person sitting inside you तो जो व्यक्ति आपके अंदर बैठे हैं, is God inside वो you. परमेश्वर खुद आपके अंदर है। So who are you carrying? तो आप किसको लेकर चल रहे हो? Not your own self. खुद को नहीं, You are carrying God with you. आप परमेश्वर को लेकर चल रहे हो। Wherever you go, जहां भी जाते हो, you are a carrier of God. आप परमेश्वर को लेके जाने वाले व्यक्ति हो। If you are a carrier of God, अगर परमेश्वर को लेके जाने वाले व्यक्ति हो, wherever you go, तो जहां भी जाओगे, lives will change. जीवन बदलेंगे, Hope will come. आशा आएगी, Disappointment will go. निराशा चली जाएगी, Discouragement will go. निराशा चली जाएगी And faith will rise और up. विश्वास उठेगा। When you say a person is God, जब आप कहते हो कोई एक व्यक्ति परमेश्वर है, at least 4 things he should have. तो उनके अंदर कम से कम 4 चीजें होना Yeah, चाहिए and Holy Spirit has all of them. और पवित्र आत्मा के अंदर वो सारी 4 चीजें हैं। Number 1, पहली बात, Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा परमेश्वर है। Why? क्यों? Because he is all powerful. क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली है। Unimaginable miracles Holy Spirit did. कल्पना भी नहीं कर सकते वैसे चमत्कार पवित्र आत्मा ने किए हैं। Jesus was born of a virgin. यीशु कुंवारी से जन्मे। He said, but I'm not married. उसने कहा लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई है। Angel said, don't worry. स्वर्गदूत ने कहा चिंता मत Holy कर, Spirit will come. पवित्र आत्मा तुझ पर आएंगे। Okay, let me say this. मुझे ये कहने दो, Is anybody having an impossible thing in front of you? आपके जीवन में किसी के भी सामने असंभव चीज है क्या इस वक्त? Yeah, let me declare over you. मुझे आपके ऊपर घोषणा करने दो। May the Holy Spirit, होने दो पवित्र आत्मा who does impossible things, जो असंभव चीजों को करते हैं, may he bring great answers for you. होने दो आपके लिए वो महान उत्तरों को ले आए। Yeah. Is the Holy Spirit powerful? क्या पवित्र आत्मा सामर्थशाली है? Third day, तीसरे दिन Jesus rose up from the dead. यीशु मुर्दों में से जी उठे। Yeah. There is nothing which is dead which the Holy Spirit cannot rise up. ऐसी कोई मरी हुई चीज है ही नहीं जिसे पवित्र आत्मा जिला नहीं सकते। Yeah. So if there are dead things in your life, तो यदि आपके जीवन में मरी हुई चीजें हैं, believe. विश्वास करो, Because the Holy Spirit क्योंकि पवित्र आत्मा is inside you, वो आपके अंदर है, with you, आपके साथ है, upon you. आपके ऊपर है। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ, I pray in the name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, Things which have died चीजें जो मर चुकी है would rise up. वो फिर से जी उठेगी। Things which are dying, चीजें जो मर रही है they will stop dying. वो मरना बंद हो जाएगा, And they will come back to life. वो जीवन वापस पाएंगे In Jesus' name. यीशु के नाम में। Yeah. Is Holy Spirit God? क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर है? Yes. हाँ। He's all knowing. वो सर्वज्ञानी है। Yeah. He knows what's going to happen to you tomorrow. वो जानते आपके साथ कल क्या होने वाला है, 10 years ahead. 10 साल बाद क्या होगा। He knows when you are going to die. वो ये भी जानते कि आप मरने वाले कब हो। You can tell your neighbor, this year I'm not dying. Bye. लेकिन अपने पड़ोसी से कहना इस साल तो मैं नहीं मर रहा हूँ।
I'm living. मैं जीने वाला हूँ And I will tell you the testimonies और मैं तुझे गवाहियां बताऊंगा of what God has done for me. जो प्रभु ने मेरे लिए किया उन बातों की गवाहियां। So who's the Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा कौन है? He's God. वो परमेश्वर He's है, present everywhere. हर जगह उपस्थित है वो। He's there on the street. वो रास्ते पर है वहाँ, He is right now over here. इस वक्त वो यहाँ पर भी But है, the most powerful thing, लेकिन सबसे सामर्थ्यवान He is चीज inside you. वो आपके अंदर है। And the fourth thing, और चौथी चीज He is eternal. वो अनंतकालिक है, Nobody created Him. किसी ने उन्हें रचा नहीं है, He's a self-existing God. वो खुद में अस्तित्व रखने वाले परमेश्वर है And He's inside you. और वहाँ आपके अंदर है। So who is this Holy Spirit that we are talking about? तो ये पवित्र आत्मा कौन है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? He is God. वो परमेश्वर है। Some of you may be thinking, Acha, we serve three gods. आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे हम तीन परमेश्वर की सेवा करते हैं ना, Father, Son, Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा। Okay, one Sunday I will talk up to you. एक रविवार को जो है मैं बात करूंगा उसके Yeah, बारे में। okay. But it's a mystery. लेकिन वो एक रहस्य है, But I pray लेकिन मैं प्रार्थना करता we हूँ will understand a bit. हम थोड़ा उसमें से समझेंगे। Number two, दूसरा नंबर, who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? He is a person. वो एक व्यक्ति है, Your neighbor. आपका पड़ोसी। Is he a person? वो एक व्यक्ति है क्या? If somebody has to be a person, अगर किसी ने व्यक्ति होना है then he has to have something. तो उसके अंदर कुछ चीजें होना जरूरी है। Can I hear an amen? क्या मैं Yeah. आमीन सुन सकता हूँ? Okay. Somebody said if you have to be a person, you need life. किसी ने कहा अगर तुम एक व्यक्ति होना है तो तुम्हारे अंदर जीवन होना जरूरी है। No. नहीं नहीं, Even plants have got life. जो पौधे हैं उनमें भी जीवन है, Even animals have life. जानवरों में भी जीवन है, Even creation has got life. सृष्टि में भी जीवन है, But they are not people. लेकिन वो लोग नहीं है। Who are people? लोग कौन है? Those who have a soul. जिनके अंदर प्राण है। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन So सकता हूँ? who is the Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा कौन है? He is a person. वो एक व्यक्ति है। Why is he a person? वो एक व्यक्ति क्यों है? Because he has a soul. क्योंकि उनके पास प्राण है। Do you have a soul? आपके पास प्राण है क्या? Come on, yes or yes, हाँ yes. या ना? You have a soul. आपके पास प्राण है। Okay, look at it. Hebrews 10 verse 38. इब्रानियों 10:38, The righteous shall live by faith. धर्मी जन विश्वास से जिएगा। In Jesus, यीशु मसीह में you are righteous. आप धर्मी हो। So he says, now don't go back. अभी वो कहते तू पीछे मत जाना, Keep going ahead. आगे चलते रहे। कितना भी तूफान आया तो पीछे जाना नहीं है. प्रभु तुझे मदद करने वाला है आगे जाने के लिए. आमेन आमेन। Keep going ahead. Keep going आगे ahead. चलते रहो, आगे बढ़ते Keep रहो, going ahead. Keep आ- going ahead. आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। If a righteous falls 7 times, अगर धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए, God will lift him 7 times. प्रभु उसको 7 बार उठाएंगे। Don't get tired. थक मत जाओ। This journey will get over. मुझे कहने दो ये यात्रा खत्म होने वाली है। खत्म होने वाला है. कोई कोई लोगों का 30 साल के बाद होगा, कोई कोई 40 होगा, कोई कोई लोगों का 10 साल, कोई कोई लोगों का 7 साल, लेकिन खत्म होने वाला है. Yes. One thing is sure, death is sure. एक बात है निश्चित कि मृत्यु निश्चित है। Yeah. So तो don't get tired. थक मत जाना। थक गया तो प्रभु को कहना कि प्रभु मुझे थोड़ा सा ना ताजा बनाओ, थोड़ा ताकतवर बनाओ, थोड़ा मैं खड़ा रह सकता हूँ, थोड़ा आपके साथ चल सकता हूँ, ऐसा Amen. कुछ बनाओ यीशु के नाम में. आमेन आमेन। Then he says, my soul has no pleasure in a person like that. फिर वो कहते आगे ऐसे व्यक्ति में मुझे कोई प्रसन्नता नहीं मिलती। Yeah, my soul, मेरे प्राण को, my soul. Holy Spirit has a soul. पवित्र आत्मा के पास प्राण है। That means इसका अर्थ he can think like you think. वो जैसे आप सोचते हैं वैसे सोच सकते हैं। तो वो जो आपके अंदर बैठा है ना, वो सोच सकता है. आमेन। He's not just powerful, just all-knowing, just everywhere. No, 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 no. But he can think like you think. वो सिर्फ सामर्थवान सर्वज्ञानी हर जगह उपस्थित वैसा ही नहीं है सिर्फ, लेकिन वो जैसे आप सोचते हैं ना वैसे सोच सकते हैं। Yeah, that means he has a mind. इसका अर्थ उनके पास मन है, He can feel. वो महसूस कर सकते हैं। Do you feel? आपको महसूस होता है क्या? Yeah. हाँ। Do you feel the coolness of AC? एसी की जो ठंड है आपको महसूस होती है? Yeah. हाँ। Holy Spirit also feels. पवित्र आत्मा को भी महसूस होता है। Does he feel loved? क्या उनको प्रेम किया गया महसूस होता है? Does he feel appreciated? उनको सराहा हुआ महसूस होता है क्या? Yeah. हाँ। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ that you will be a joy to the Holy Spirit. कि आप पवित्र आत्मा के लिए आनंद होंगे। And he also has a will. और उनकी इच्छा भी है उनके पास। It's not, only the Father has will, Jesus has will. No, 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 no.
Holy Spirit also has a will. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिता के पास इच्छा है, यीशु के पास इच्छा है, पवित्र आत्मा के पास भी इच्छा है। But this beautiful family, लेकिन ये सुंदर परिवार जो है ना, all their three wills, ये तीनों की जो इच्छाएं है, Father, पिता की, Jesus, यीशु की, Holy Spirit, पवित्र आत्मा they की, are all one. वो सब एक ही है। इतना समझोगे तो ट्रिनिटी समझ जाओगे यीशु के नाम आमेन, में। आमेन। So the Holy Spirit has a soul. तो पवित्र आत्मा के पास प्राण है। Do you have a soul? आपके पास प्राण है क्या? 1 Thessalonians 5:23. पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 It says you have a spirit, वचन कहता है तुम्हारे अंदर आत्मा है, you have a soul, तुम्हारे पास प्राण है and you have a body. और तुम्हारे पास शरीर है। And what I am seeing today right now और आज जो मैं देख रहा हूँ वो क्या है पता है? is your nice body. आपका अच्छा शरीर, Yeah. गोल शरीर, गोल शरीर, पतला शरीर, पतला शरीर, लंबा शरीर, लंबा शरीर, मोटा शरीर, मोटा शरीर, whatever शरीर. जो भी शरीर है वो But शरीर। more than the शरीर, लेकिन शरीर से बढ़कर something is inside it. कुछ तो उसके अंदर है। So he can think तो वो सोच सकते हैं like you can think. जैसे आप सोच सकते हो वैसे, He can feel वो महसूस कर सकते हैं like you can feel. जैसे आपको महसूस होता है He वैसे, can decide वो निर्णय कर सकते हैं like you can decide. जैसे आप निर्णय कर सकते हो। Your fellowship with the Holy Spirit should really be colorful. आपकी जो संगति है पवित्र आत्मा के साथ सच में रंग बिरंगी होना है। Yeah. Can I hear an amen over there? Amen. Okay. Now this person, अभी ये व्यक्ति he is going to work for you. वो आपके लिए काम करने वाले हैं, He's going to work in you. वो आपके अंदर काम करने वाले Yeah. हैं। Are you ready? आप तैयार हो? Yeah. Number one, पहला नंबर, the Holy Spirit will transform our lives. पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवनों को परिवर्तित कर देगी। Yeah. पूरी तरीके से तेरा जीवन बदलने वाला है यीशु के नाम। आमेन, आमेन। Anybody feels that Jesus has changed your life? किसी को ऐसा लगता है कि यीशु ने आपके जीवन को पूरी तरह बदल दिया है? You feel genuinely changed हुआ है? आपको सच में लगता है कि बदल गया है? Yeah. Okay. Now listen. अभी सुनो, It's not the Father. वो पिता नहीं है, It's not Jesus. यीशु नहीं, But it's the Holy Spirit who has brought this change in your life. लेकिन वो पवित्र आत्मा है जिन्होंने आपके जीवन में ये बदलाव लाया है। Yeah. So when we talk about change, तो जब हम बदलाव की बात करते हैं, your character is going to change. आपका चरित्र बदलने वाला है। तो तेरा जो नाम जो अच्छा नहीं है वो प्रभु अच्छा बनाने वाला है. आमेन, आमेन। More than silver and gold चांदी सोने से भी बढ़कर is your name. वो आपका नाम है। And we all have somewhere or the other, damaged our name, right? और हमारा कहीं ना कहीं जो है नाम को जो है नुकसान पहुंचा है। Yeah. But what God is saying, लेकिन प्रभु क्या कह रहे I हैं? can change that. मैं उसे बदल सकता हूँ। My Holy Spirit will change that. मेरी पवित्र आत्मा उसे बदलेगी। 1 Samuel chapter 10 verse 6. पहला शमूएल 10:6 It says, the Spirit of God will come upon you, Saul. यहाँ पर लिखा है शाऊल परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा। When it will come, वो कब आएगा? you will meet a group of people. जब तू एक लोगों के ग्रुप से मिलेगा Yeah, and they will be worshiping God, praising God. और प्रभु की वो आराधना करते होंगे, प्रभु की स्तुति करते The होंगे। moment you meet this group, जिस क्षण तू इस ग्रुप से मिलेगा, the Spirit of God which is over them, पवित्र परमेश्वर का आत्मा जो उनके ऊपर है it will come on you. वो तुझ पर आ जाएगा। And what is going to happen? और क्या होने वाला है? You will start prophesying. तू भविष्यवाणी करना शुरू करेगा। When you come to church, जब आप कली से आते हो some things will happen. कुछ चीजें होंगी। कुछ चीजें अच्छी चीजें होने वाली है. आमेन। यीशु के नाम में अच्छी चीजें. Amen. And then और उसके बाद you'll be transformed. तू बदल जाएगा। यानी जो झूठ बोलता है, झूठ बोलना बंद। बंद. जो चुगली करना, गॉसिप चुगली करता है, हाँ, वो बंद. आमेन। जो पोर्नोग्राफी देखता है, जो अश्लील चित्र देखता है वो भी बंद. वो देखना बंद। वो सब हम करते थे, लेकिन अभी नहीं करना है. आमेन। Oh, come on. That's why the Holy Spirit has been given to you. इसीलिए पवित्र आत्मा आपको दिए गए हैं। Yeah. झगड़ा करना बंद. आमेन। Put CEV. The Holy Spirit will suddenly take control of you. पवित्र आत्मा जो अचानक से तुझ पर नियंत्रण ले लेंगे। Yeah. अच्छा, आपको पता है कभी कभी आप कुछ बोलने वाले थे, तभी आपके मुंह में किसी ने ऐसा कुछ खींचा, ऐसा लगा. Yes, ऐसा yes. हुआ है कभी? Who did it? किसने किया वो? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने किया है। Who did it? किसने किया वो? The Holy Spirit did it. पवित्र आत्मा ने किया है। Yeah. वापस तेरे दोस्तों ने बोला, लगा बॉटल, लगा 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 लगा. वो आपके दोस्त ने बोला वहाँ बॉटल लगा लगा लगा, And your heart was just going. और आपका हाथ जाने ही वाला था वहां। Then suddenly it came back. फिर अचानक से पीछे आया वो।
How it came? वो कैसे आया पीछे? No, Pastor, my willpower. नहीं पास्टर, मेरी इच्छा शक्ति थी वो। What willpower? क्या इच्छा शक्ति? Your willpower is zero. तेरी इच्छा शक्ति शून्य है। Holy Spirit has taken control of you in the name of Jesus. पवित्र आत्मा ने तुझ पर नियंत्रण ले लिया यीशु के नाम में। Now, we are all selfish people. हम सब स्वार्थी लोग हैं। We are all evil people. हम सब दुष्ट लोग हैं। We are all wicked people. हम सब दुष्ट लोग हैं। Pastor, say some good thing now. पास्टर कुछ अच्छी चीजें बोलो ना। There is nothing good. कुछ भी अच्छा नहीं है। I didn't say, Jesus said. मैंने नहीं कहा, यीशु ने कहा है। Yeah. John 15 verse 5, Jesus said, you are nothing. यूहन्ना 15 में God is mother, father, both together. प्रभु माता पिता दोनों साथ में है आपके लिए। Yeah. You look at your children. आप आपके बच्चों को देखो, You never give up on them. आप कभी उन पर हार नहीं मानते। Yeah. No matter. I have seen mothers and fathers going and meeting their children in the prison. मैंने माता पिताओं को देखा, उनके बच्चों को जाके जेल में भी मिलते हुए। Yeah. I know a mother whose son has actually he is put in the prison because of the evil he did against a child. मैं एक ऐसी माँ को जानता हूँ जिसके बेटे को एक बच्चे के साथ बुराई करने के कारण जेल में डाला गया। Yeah, but still, this mother, she goes to meet him. लेकिन फिर भी ये माँ उससे मिलने जाती है। A mother like her, उसके जैसी माँ who is evil, जो बुरी होकर, who is wicked, जो दुष्ट होकर, still she is going. फिर भी वो जा रही है। How much more? कितना और ज्यादा Your God in heaven. आपके प्रभु जो स्वर्ग में है। Come on, I think you should give the Lord a big hand. आपने प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहिए। Oh, how much more God. कितना बढ़कर प्रभु। So, is God working on you? क्या प्रभु आपके ऊपर काम कर रहे हैं? Philippians 2:13, NLT Bible. फिलिपियो 2:13 NLT बाइबल कहता है, God is at work. प्रभु काम कर रहे हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु आपके ऊपर काम कर रहा है, आमेन। मुझ पर काम कर रहा है, हमारे परिवार के ऊपर काम कर रहा है, Amen. इस कलीसिया के ऊपर काम कर रहा है, इस शहर के ऊपर प्रभु काम कर रहा है यीशु के नाम में। आमेन। God is working in you. प्रभु काम कर रहे हैं। What is he giving you? वो आपको क्या दे रहे हैं? Desire. इच्छाएं दे रहे हैं। Tell your neighbor, take. अपने पड़ोसी से कहना, ले लो। Take. So you have your own evil desire. तो आपके पास आपकी खुद की दुष्ट इच्छा है। Underline that word, pleases him. This is where the Holy Spirit wants to bring you, that you would be a joy to God, you would be a pleasing person to God in the name of Jesus. पवित्र आत्मा आपको इस स्थान पर लाना चाहते हैं जहां पर आप प्रभु के लिए आनंद का कारण बनो, आप प्रभु के लिए प्रसन्नता की बात बनो यीशु के नाम Oh में। yeah, God should say, look at him. प्रभु ने कहना चाहिए, देखो उसको, देखो He is weak, वो कमजोर है, but my spirit has made him strong. लेकिन मेरी आत्मा ने उसे बलवान बनाया है। He is evil, वो दुष्ट है, but he is living a righteous life. लेकिन वो धर्मी जीवन जी रहा है। Okay, so what is the Lord saying? तो प्रभु क्या कह रहे हैं? I am working in you. मैं तुझ में काम कर रहा हूँ, I am giving you divine desires. मैं तुझे दैवीय इच्छाएं दे रहा हूँ, And I'm giving you ability. और मैं तुझे क्षमता भी दे रहा हूँ। Galatians chapter 5. गलातियों 5 Pick your hand like this. अपना हाथ ऐसा ऊपर उठाओ। How many fingers? कितनी उंगलियां है? 5. 5. Okay. Put your hand down. अपना हाथ नीचे रखिए। Verse 19, वचन 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22 23. और 23। In these 5 words, इन 5 वचनों में a evil, cruel, wicked man एक दुष्ट क्रूर व्यक्ति can be changed completely. वो पूरी तरह बदल सकता है। Yeah. 19, 19, 20, 20, 21. 21 About our evil. हमारी जो दुष्टता के बारे में। 22 22 और 23. और 23 Oh, Holy Spirit has done something. पवित्र आत्मा ने कुछ किया है। So what God is saying, तो प्रभु क्या कह रहे हैं पता है? I am going to shift you. मैं तुझे जो है शिफ्ट करूंगा। Yeah, I'm going to shift you. मैं तुझे शिफ्ट करूंगा। I'm going to promote you. मैं तुझे प्रमोट करूंगा। From 19, 20, 21, 19, 20, 21 से you will go to 22 and 23. तू 22 और 23 में जाएगा। Now, who will bring me from 19, 20, 21? 19, 20, 21 से मुझे आगे कौन ले आएगा? From here to 22, 23. Who will bring me? यहाँ से 22 और 23 में मुझे कौन ले आएगा? Not any man, कोई मनुष्य नहीं, but a person. लेकिन एक व्यक्ति। And do you know where he is? और पता है वो कहाँ पर है? He is inside you. वो आपके अंदर ही है। So I declare over you, तो मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ, you shall be promoted. आपको प्रमोट किया जाए।
2:22 and 23. 22 और 23 में। And people will say about you, और लोग आपके बारे में कहेंगे, this man changed. ये व्यक्ति बदल गया है। People will talk about you लोग जो आपके बारे में बात करते हैं and they will say, और वो कहेंगे, this person has become sweet. ये व्यक्ति तो अभी मीठा हो गया है। Somebody will say, कोई तो ऐसा कहेगा, I feel this person has become the bride of Jesus. मुझे ऐसा लगता है ये व्यक्ति यीशु की दुल्हन बन गया है। Yeah. क्योंकि दुल्हन को सुंदर होना है आमीन, और आपको प्रभु तैयार कर रहा है यीशु के नाम में। आमीन। But the person who can do this is only one person and his name is the Holy Spirit. लेकिन वो व्यक्ति जो सिर्फ ये कर सकता है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है और उनका नाम है पवित्र आत्मा। Now I'm going to say something which I want you to understand. अभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ आप समझो। For this change to happen, ये बदलाव होने के लिए one is you will have to meditate and declare something. पहला चीज आपने कुछ चीजों पर मनन करना है और घोषणा करना है। And I'll give you only 2 verses. और मैं आपको सिर्फ 2 वचन दूंगा। Don't worry. Galatians chapter 5, गलातियों 5 verse 24. वचन 24। Keep in mind. इस बात को ध्यान में रखो। नहीं पास्टर, कहाँ टाइम है अपने को? पास्टर कहाँ समय है हमारे पास? फिर बदलेगा नहीं. फिर नहीं बदलेगा। Think about it. इसके बारे में सोचो। So when you are doing like that, ना, जब आप ऐसे लेट के ऐसे कर रहे हो ना, लेट के नहीं बैठे भी. बैठे भी Think. सोचो। What should you think? आपने क्या सोचना है? If you belong to Jesus. अगर तुम यीशु के हो, How many of you belong to Jesus over here? कितने लोग यीशु के हैं यहाँ पर? Somebody say amen. कोई तो आमीन कहिए। Okay. Okay. Then उसके बाद you have been already crucified. तुम्हें क्रूसित किया गया है। The day he said, जिस दिन उन्होंने कहा, Jesus, यीशु please save me from my sin. मेरे पापों से मुझे बचाओ, I'm a sinner. मैं एक पापी हूँ। Jesus said, come. यीशु ने कहा आजा आजा आजा। Come. Go. Amen. All right. Pastor, nothing is happening in my life. Nothing is. पास्टर मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। What is Bible saying? बाइबल क्या कह रही है? Yeah. Think. सोचो, सोचो। What should you think? आपने क्या सोचना है? That when I came to the Lord, कि जब मैं प्रभु के पास आया, something happened. कुछ तो हुआ है। I've been crucified. Please मुझे underline that. क्रूसित किया गया है। I have been crucified. मुझे क्रूसित किया गया है। यानी something has died. इसका अर्थ कुछ तो मर गया है। पास्टर लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है. विश्वास करना है. आमीन। विश्वास करना है. Something happened on that day. उस दिन कुछ तो हुआ है। Yeah, because of what Jesus did for you. जो यीशु ने आपके लिए किया उस चीज के कारण। What was crucified? क्या क्रूसित किया गया? Self-life. हमारा स्वार्थी जीवन। Please underline that. Self-life. स्वार्थी जीवन। My selfishness has been crucified. मेरा स्वार्थीपन क्रूसित किया गया है। But you will say, लेकिन आप कहोगे, but I still live a selfish life. लेकिन अभी भी मैं स्वार्थी जीवन जी रहा हूँ। That's why I have to now depend on the Holy Spirit. इसीलिए अभी मैंने पवित्र आत्मा पर निर्भर होना जरूरी है। Yeah. क्योंकि ये स्वार्थी जीवन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के नीचे रखना पड़ता है। आमीन आमीन। Can I hear an amen over here? आमीन। Are you all with me? आप सब मेरे साथ So हो? you should think about this तो आपने इसके बारे में सोचना है and you should declare it. और आपने घोषणा करना है। Declare it. घोषणा करना है। Declare it. घोषणा करना है। All those who are struggling जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं with your self life, अपने स्वार्थी जीवन से, think about this scripture. इस वचन के बारे में सोचो Declare it over your life. और आपके खुद के जीवन पर घोषणा करो। Tell your self life, अपने स्वार्थी जीवन से कहो, you have died. तू मर गया है। 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24। Did Jesus take all your sins? क्या यीशु ने आपके सारे पापों को ले लिया है? Yeah. Okay, praise God. Now, because of that, we receive forgiveness, वगैरह. अभी उसके कारण क्षमा मिलती है और भी बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। But please underline this. लेकिन इसे अंडरलाइन करेंगे अभी। Why did he do it? उन्होंने ये क्यों किया? So ताकि we would stop sinning हम पाप करना बंद करें and start living right. Please underline और that. सही जीवन जीना शुरू करें। Yeah. कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु ने आपका सारे पाप के दंड ले लिए हैं? यस। ले लिया ना? क्यों लिया है? ताकि तू पाप के जीवन के लिए ना करे, बंद करे और प्रभु के साथ चलना शुरू करे यीशु के नाम। आमीन आमीन। So what should you think? तो आपने क्या सोचना है? Think this. इसके बारे में सोचो। This is what happened. ये हुआ है। ये हुआ है। यीशु सिर्फ हमें क्षमा करने के लिए मारा नहीं गया, यीशु हमारे लिए इसलिए मारा भी गया है ताकि हम पाप से दूर रहे। आमीन। So you may say,
अभी आप शायद कहोगे, But what about the Holy Spirit? लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में क्या? Now you should pray also. अभी आपने प्रार्थना भी करना है. What should you pray? आपने क्या प्रार्थना करना है? Holy Spirit, पवित्र आत्मा, give me fresh, strong God desires. मुझे ताजी मजबूत दैवीय इच्छाएं दो. Yeah, ये मर गया ना, अभी मुझे कुछ मांगता है ना. Amen. This has died. Now I need something. ये मर गया, अभी मुझे कुछ चाहिए. Yeah, I need fresh divine desires from you. मुझे आपकी ओर से ताजा जो है दैवीय इच्छाएं चाहिए. Yeah, in the name of Jesus. यीशु के नाम में. Yeah, Matthew 7 verse 7. मत्ती 7 अध्याय वचन 7. Ask मांगो and it will be given to you. और तुम्हें दिया जाएगा. Number 2, दूसरा नंबर, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा, He will convict us of sin. वो हमें पाप का एहसास दिलाएंगे. What is conviction? ये एहसास लाना क्या है? The Holy Spirit, पवित्र आत्मा, He will help a person वो एक व्यक्ति की मदद करेंगे because He's a helper. क्योंकि वो मददगार है ना. What is the help? क्या मदद होगी? He makes you aware. वो आपको सतर्क करेंगे. Awareness will come. सतर्कता आएगी. About what? किस चीज के बारे में? About sin पाप के विषय में and wrongdoing. और जो गलत काम होते हैं उनके विषय में. Yeah. So conviction is very powerful. तो एहसास बहुत सामर्थ्यवान बात है. It makes you aware. वो आपको सतर्क बनाता है. This conviction अभी ये जो एहसास है is a gift from the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की ओर से तोहफा है. Yeah. We are very wicked people. हम बहुत दुष्ट लोग हैं, But in the midst of all that, लेकिन उन सब के बीच में still God brings that conviction. फिर भी प्रभु एहसास लाते हैं. And in this journey, और इस यात्रा में from the day you were born naturally जिस दिन से आपका स्वाभाविक रूप से जन्म हुआ, to the time you were born spiritually, आपका आत्मिक रूप से जन्म होने तक somebody was working on you कोई तो आपके ऊपर काम कर रहा day था, and night. दिन और रात. Who is that? वो कौन है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा है. Before I came to the Lord, मैं प्रभु के पास आने से पहले yeah, I loved sin. मैंने पाप से प्यार किया. Maybe for you some different, आपके लिए शायद कुछ और होगा, for me different. मेरे लिए कुछ और. But we all liked it. लेकिन हम सब उससे प्यार करते But थे. in the middle of that whole thing, लेकिन उस सब चीजों के बीच में the Holy Spirit entered us. पवित्र आत्मा ने हम पर हमारे अंदर प्रवेश किया. Yeah. I'm not saying we became the temple of मैं God. ऐसा नहीं कह रहा कि हम परमेश्वर के मंदिर बन गए, But somewhere in our mind, लेकिन कहीं तो हमारे मन में we realize हमें एहसास हुआ I'm a sinner. मैं एक पापी हूँ. I'm a sinner. मैं पापी हूँ. I'm a sinner. मैं एक पापी हूँ. I'm a sinner. मैं एक पापी हूँ. I'm a sinner. मैं एक पापी हूँ. Who brought that realization? किसने वो एहसास लाया? Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने. Your salvation depended on the Holy Spirit. आपका जो उद्धार है वो पवित्र आत्मा पर ही निर्भर था. If He wouldn't have worked, you wouldn't have been saved. अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो हमारा उद्धार भी नहीं होता. But thank God to the Holy लेकिन Spirit. प्रभु का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के लिए. Many of us, we were not willing to come to the Lord quickly because we enjoyed our self life. Correct? हम में से बहुत लोग जो है ना प्रभु के पास आने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि हमने हमारा जो स्वार्थी जीवन है ना उसका आनंद ले रहे थे हम. Many people say to me, when I become 60, I will come to the Lord. बहुत सारे लोग ऐसा मुझसे कहते हैं जब मैं 60 साल का होऊंगा ना तब प्रभु के पास आऊंगा. Why? क्यों? Because they want to enjoy their self life. क्योंकि वो अपने स्वार्थी जीवन का मजा लेना चाहते हैं. It was not easy. आसान नहीं था. Oh, the Holy Spirit really worked on us. पवित्र आत्मा ने सच पे हम पर काम किया हम पर. Because you cannot receive the Lord till you acknowledge, I am a sinner. जब तक आप इस बात को जो मान नहीं लेते कि मैं पापी हूं तब तक आप जो है प्रभु को स्वीकार ही नहीं सकते. But thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो. Holy Spirit had victory over Vijay. पवित्र आत्मा ने पास्टर विजय पर विजय पाई. So the one sitting inside you is a person who has journeyed with you in life. जो आपके अंदर बैठे हैं ना वो एक व्यक्ति है जिन्होंने जीवन भर आपके साथ यात्रा की And है he did not give up on you. और उन्होंने आप पर हार नहीं मानी. शादी में अगर तकलीफ हुआ तो हम लोग क्या करते हैं ना, पत्नी को बोलते जा तुझे घर जा. पत्नी को बोलते तू तेरे घर जा. But the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा. Oh, thank God for the Holy Spirit. प्रभु का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के. And what a person he is. और क्या व्यक्ति है वो. Doesn't give up. हार ही नहीं मानते. Demons must be saying, अरे Holy Spirit छोड़ ना, जाने देना, वो नहीं होने वाला, ये एड़ा है, वो मेरा है, मेरा है, मेरा. दुष्ट आत्माएं कह रही होंगी जाने दो ना पवित्र आत्मा, छोड़ दो ना, वो मेरा है, वो एड़ा है. Holy Spirit is saying, पवित्र आत्मा कह रहे हैं nah, नहीं, my job मेरा काम is to help him. इसकी मदद करना है. And I will work on him. मैं उस पर काम करूंगा. I will work on मैं him. उसके ऊपर काम करूंगा. I will not give up on him. मैं उस पर हार नहीं मानने वाला. In Jesus' name. यीशु के नाम में.
So even people sitting in your home, तो जो लोग आपके घर में बैठे वो लोग भी don't give up उन पर हार मत मानना, because the Holy Spirit is क्योंकि working. पवित्र आत्मा उनमें काम कर रहे हैं। I pray your whole household shall be मैं saved. प्रार्थना करता हूं आपके पूरे घराने का उद्धार हो। Yeah. Why? क्यों? Because the Holy Spirit is working. क्योंकि पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। All right. आमीन। And he is not a failed person. He likes victory. और वो कभी हारे हुए व्यक्ति नहीं, वो विजय पसंद करते I हैं। tell you, मैं आपसे कहता हूं, believe God. Even on the deathbed, Holy Spirit will bring conviction and lead people to salvation. मैं कहना चाहता हूँ, विश्वास करो कि मृत्यु के बिछाने पर भी पवित्र आत्मा एहसास लाएंगे और उस व्यक्ति के जीवन में उद्धार आएगा यीशु के नाम में। Okay. So when the conviction comes, what can you do? तो जब एहसास आता है तो आप क्या कर सकते हो? 3 things. 3 चीजें You can ignore it. आप नजरअंदाज कर सकते हो। कितने लोगों ने नजरअंदाज किया? प्रभु कहता है मत कर, और आप वही करते हो। How many of you feel when you're going to do something not good, अंदर से आपको ऐसा as if you know एक गाड़ी फास्ट तेज लोकल जा रही है अंदर से, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है जब आप कुछ गलत करने वाले थे और ऐसा हुआ कि अंदर से एक तेज लोकल गई धड़ 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 करके, but still लेकिन फिर भी we go ahead. हम आगे बढ़ते हैं। Number 2, you can reject it. दूसरा, आप उसका इनकार कर सकते हो। छोड़ना छोड़ना छोड़ना। छोड़ना। Actually ना, I cannot understand how God does this. मैं समझ ही नहीं सकता हूँ प्रभु ये कैसा करते हैं। God tells us to do something and we do the opposite. प्रभु हमें करने के लिए कुछ कहते हैं और हम उसका उल्टा ही करते हैं, And He is inside us. और वो हमारे अंदर है। Of course, the Bible says He becomes sad. I will talk to you about that on another day. हाँ, बाइबल कहती है वो दुखी होते हैं, उसके बारे में मैं किसी और दिन बात करूंगा आपसे। But I mean, how you must be feeling, na? लेकिन उनको कैसा महसूस हो रहा होगा ना? How you must be feeling? कैसा महसूस होता होगा? You slap your wife आप आपकी पत्नी को चाटा मारते हो and you're a believer. और आप विश्वासी हो। Think what must be happening to the Holy Spirit. सोचो पवित्र आत्मा को कैसा लगता होगा। And demons, they play with the Holy Spirit. और दुष्ट आत्मा जो है ना, पवित्र आत्मा के साथ खेल खेलते हैं। They laugh at him. उनको देख के हंसते They हैं। say, see the ones you are trying to help. वो कहते हैं, देख जिन लोगों की तू मदद करने की कोशिश कर रहा है, वो देख क्या कर रहे हैं। But still, लेकिन फिर भी next one. उसके बाद, Wow. But you accept it लेकिन आप उसे स्वीकारते हो and you flow with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के साथ बहना शुरू करते हो। You can take these 3 options. आप ये 3 पर्याय ले सकते हो। But as I close, लेकिन जैसे मैं समाप्त कर रहा हूँ, if you ignore or reject the conviction, अगर आप जब एहसास आता है उसे नजरअंदाज करोगे या उसका इनकार करोगे, that conviction will fade away. वो जो एहसास है ना, धुंधला पड़ेगा। Yeah, you all know what I'm saying. आप सब जानते हो जो मैं कह रहा हूँ। And it will result in a hardened heart. और उसका परिणाम ये होगा कि कठोर हृदय होगा And you will wander away from God's. और प्रभु की इच्छा से आप दूर भटक जाओगे। Yeah. Suppose you're married मान लो आपकी शादी हुई है and you begin an affair outside. और बाहर आप अफेयर शुरू करते हो। It always begins with hi, hello. हमेशा उसकी शुरुआत हाय हेलो से होती है। And that time, और उस समय Holy Spirit पवित्र आत्मा is telling you, वो आपसे कह रहे हैं, don't do it. मत कर, Don't do it. मत कर। You're a married person. तू शादीशुदा व्यक्ति You're है, a married person. तू शादीशुदा व्यक्ति है। Come on, are you there with me? But लेकिन you're taking steps. आप कदम आगे बढ़ा रहे हो, You're taking steps. आप कदम आगे बढ़ा Still रहे the हो, Holy Spirit is saying, फिर भी पवित्र आत्मा कह रहे हैं, don't do it. मत कर। You come on a Sunday morning आप रविवार सुबह आते हो and the Holy Spirit speaks through me और पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपसे बात and करते हैं says, don't do it. और कहते हैं मत कर, But still you're taking steps. लेकिन फिर भी आप कदम आगे बढ़ा रहे हो। See, when you begin to take steps and steps and steps जब आप कदम बढ़ाते रहते हो, बढ़ाते रहते हो, बढ़ाते रहते हो towards that sin, उस पाप की ओर, slowly धीरे से that conviction will begin to fade. वो एहसास जो है ना, धुंधला होना शुरू हो जाएगा। Yeah. You think about it. आप इसके बारे में सोचो। Every time you did ulta, you हर did समय जब ulta. आपने कुछ उल्टा किया, Yeah, the conviction failed. वो एहसास जो है ना, धुंधला पड़ता गया। I don't know what we have done. मुझे नहीं पता हमने क्या किया है। Yeah, maybe removing 500 rupees from our daddy's pocket. शायद हमारे पिताजी के बटवे से जो है 500 रुपए निकाले होंगे, But when we are going there, लेकिन जब हम वहां जा रहे थे, yeah, conviction. एहसास आ रहा था, Yeah, conviction. एहसास आ रहा था, But when you touched, लेकिन जब आपने छुआ, slowly conviction has gone. धीरे से एहसास चला गया। Conviction doesn't remain. एहसास जो है बना नहीं रहता है। Yeah, the moment you touch sin, जिस क्षण पाप को आप छू लेते हो ना, conviction has faded away. एहसास धुंधला हो जाता है। Now remember,
अभी याद रखना, if you don't listen to the conviction of the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के एहसास को सुनोगे नहीं your heart will become hard. तो आपका हृदय जो है ना कठोर होगा। Yeah, that's what the demons are waiting for. दुष्ट आत्मा उसके लिए तो रुके हैं, Yeah, but thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, I believe मैं विश्वास किया, we are going to learn a good lesson today in Jesus' मैं name. विश्वास करता हूँ आज हम जो है अच्छा पाठ पढ़ने वाले हैं। Yeah, John 8, यूहन्ना 8 verse 7. वचन 7। This is how conviction works. एहसास ऐसे काम करता है। One day they caught a woman in adultery. एक दिन उन्होंने एक स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ा, This is a lady ये वो caught in स्त्री adultery. जो व्यभिचार में पकड़ी गई। Okay, so they came to Jesus. तो यीशु के पास आए, They wanted to catch Jesus. वो यीशु को पकड़ना चाहते थे। So they said, तो उन्होंने कहा this woman has committed adultery. इस स्त्री ने ना व्यभिचार किया है, You know, the law says we have to stone her to death. और उन्होंने कहा व्यवस्था में कहा गया कि उसको पत्थर मार के मार डालना So है। Jesus said, okay, तो यीशु ने कहा ठीक है, ready now? तैयार हो अभी? Yeah, this is how conviction comes. इस प्रकार एहसास आता है। Jesus said, यीशु ने कहा if anybody has not sinned, अगर किसी ने भी यहाँ पाप नहीं किया है, let him be the first person वो पहला व्यक्ति होने दो to throw the stone. जो पत्थर उठा के उसको मारे। What came? क्या हुआ? Conviction came. एहसास आया। Suddenly what happened? अचानक से क्या हुआ? They put the stones down. पत्थर नीचे डाले उन्होंने They went away. और चले गए वहां से। Okay. They went away. Conviction came, एहसास आया but they went away. लेकिन वो वहां से चले गए। This girl, ये लड़की now she is standing over there. अभी वो वहां पर खड़ी है। What is she convicted about? वो किस बारे में उसको एहसास मिला है? I'm a sinner मैं एक पापी हूँ and I should be stoned to death. और मुझे पत्थर मार के मार डाला जाना है। But where did she turn? लेकिन वो कहाँ मुड़ी? To the Savior. उद्धारकर्ता की ओर। Conviction एहसास should not take you away from God. उसने आपको प्रभु से दूर नहीं ले जाना है। Conviction एहसास ने should take you to Jesus. उसने आपको यीशु के पास ले जाना है। That's the work of the Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा का काम है। Hebrews 3:13. इब्रानियों 3:13 Help each other एक दूसरे की मदद करो so that you are not deceived by sin. ताकि तुम पाप से धोखा ना खाओ। In the church, we are trying to help you. कलीसिया में हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। Yeah. We are not God, we are trying to help you. हम परमेश्वर नहीं है लेकिन हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे But God, the Holy Spirit, is helping you. हैं। लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा आपकी मदद कर रहे हैं। Help each other एक दूसरे की मदद करो so that you will not be fooled. ताकि तुम मूर्ख ना बनाए जाओ। That means इसका अर्थ some people, when they are in sin, कुछ लोग जब पाप में होते हैं what they say, वो क्या कहते हैं? it's okay. चलता है। Now I want to say this. अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, It is not okay. नहीं चलता है। Let me say it again. मुझे फिर से कहने दो, It is not okay. नहीं चलता है। Okay, now let me say something over here. All the young people, सारे जवानों को कुछ कहना चाहता हूँ। all. सारे जवान, Okay. When your mother and father is not at home, जब आपके माता पिता घर में नहीं है, nobody from the opposite sex should come to your home. कोई भी जो है आपके विरुद्ध लिंग यानी आप लड़का हो तो लड़की नहीं आना है, लड़की हो तो लड़का नहीं आना है। No, pastor, we are good friend. नहीं पास्टर, हम अच्छे दोस्त हैं। Don't create a zone where you will do something wrong. ऐसा क्षेत्र मत बनाओ जिसमें आप कुछ गलत कर दोगे। Yeah. No, pastor, I have confidence. नहीं पास्टर, मेरे अंदर ना पूरा आत्मविश्वास है। She will sit over there, I will sit here. Pastor. वो वहां बैठेगी, मैं यहाँ बैठूंगा। We are friends. हम तो दोस्त हैं। Now I'll tell you something. अभी मैं आपको कुछ कहता हूँ। ये जो है ना, इस पे कभी भरोसा मत करना. यस, Paul said पौलुस ने कहा in Philippians 3:3, डाल बेटा. फिलिपियो 3:3 में, I have no confidence in my flesh. मेरे शरीर पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। Brother, मुझे लिफ्ट दोगी क्या? नहीं। लड़की. Why no? क्यों नहीं? No confidence in the flesh. क्योंकि शरीर पे भरोसा नहीं है। नहीं पास्टर, मुझे कुछ नहीं होता है. तू गया. तू गया, तू गया. तू गया। Tell that dear girl, you are too beautiful. उस लड़की से कहो तू बहुत खूबसूरत है। Yeah. You're too beautiful. तू बहुत खूबसूरत है। I can't handle you. मैं- उसको भी अच्छा लगना चाहिए ना. Yeah, I'm so good. Why? क्यों? Because I have no confidence in my flesh. क्योंकि मेरे शरीर पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। Romans 7:18. There is no good in your flesh. रोमियो 7:18 में बाइबल कहती है तेरे शरीर में कुछ अच्छा नहीं है। I know. मैं जानता हूँ। Sister, you're too beautiful. बहन आप बहुत सुंदर हो। I know. मैं जानता हूँ।
What do you know, Pastor? आप क्या जानते हो In पास्टर? me, मेरे अंदर, in my flesh, मेरे शरीर में nothing good dwells. कुछ भी अच्छा नहीं होता है। पास्टर, लेकिन आजकल बॉय का प्रॉब्लम है। हाँ, वो तुम लोग संभाल लो अभी। अभी वो तुम संभाल लो। Suppose heart has become very hard. मान लो हृदय बहुत कड़क हो गया है। He has started loving a very beautiful girl who doesn't know Jesus. इसने ऐसे एक सुंदर लड़की से प्यार करना शुरू किया जो यीशु को जानती नहीं। So now तो अभी his heart उसका दिल in this area has become very hard. इस क्षेत्र में बहुत कड़क हो गया है। Holy Spirit is telling him, पवित्र आत्मा कह रहे उसे, जान देना उसको, जाने दे उसको। जाने देना, नहीं बाद में प्रॉब्लम होगा। नहीं Have you ever come like this? कभी ऐसे आए हम? Yes. हाँ, It's called hardness of heart. इसे कहते हैं हृदय की कठोरता। Now this man will not pray अभी ये व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा for that area. उस क्षेत्र के लिए। So the Holy Spirit who is inside you, तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है he'll tell you, वो आपसे कहेंगे, Tambi, we need to pray for this man. तुमने इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। And he gives you a burden. और वो आपको बोझ देते हैं And you begin to cry to God और आप प्रभु को पुकारना शुरू करते हो for this man. इस व्यक्ति के लिए। When you begin to cry, जब आप पुकारना शुरू करते the हो, Holy Spirit who is like water, पवित्र आत्मा जो पानी के जैसे है, he begins to shower his hardened heart उसके with कट- that water. उसके कठोर हृदय को जो ना उस पानी की उसके ऊपर वर्षा करना शुरू And करते he हैं हृदय begins पर। to soften that heart, और soften that heart, soften that heart. ताकि वो हृदय जो है कड़क जो है वो नरम किया जाए, नरम किया जाए। That's why. इसीलिए Have you thought sometimes you suddenly remember somebody? आपको याद है कभी कभी अचानक से कोई याद आता है आपको। Yeah. What is the Holy Spirit saying? पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं? Pray for this person. उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, Pray for this person. उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, Pray for this उस person. व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। And as you pray, और जैसे आप प्रार्थना करो, that hard heart वो जो कड़क हृदय है will receive the water of God. वो परमेश्वर के पानी को प्राप्त करेगा। Galatians 4:19. Thank you. गलातियों 4:19 Yeah, Paul is saying, पौलुस कह रहा है, my little children, मेरे छोटे बच्चों, once again, फिर एक बार I am having pain over you. मुझे तुम्हारे विषय दर्द हो रहा है। Yes. What is this pain? ये दर्द क्या है? It's like a mother giving birth. मान लो एक माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तब Yeah. It's a spiritual birth. एक आत्मिक जन्म है, Yeah. But in that birth, there is a lot of pain. लेकिन उस जन्म देने में बहुत दर्द है। So what is he speaking about over here? तो यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा हो? Prayer. प्रार्थना के बारे में, Because prayer will produce something. क्योंकि प्रार्थना कुछ चीजों को उत्पन्न करेगी। Yeah. And he's saying, और वो कह रहा है, in you, तुझ में as I pray, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, Christ will be produced. मसीह तुझ में जन्म लेगा। Yeah. So when you feel burdened about somebody, जब तुम्हें किसी के बारे में बोझ महसूस होता है, start praying. प्रार्थना करना शुरू करो, Start praying. प्रार्थना करना शुरू करो। Maybe your prayer can change the whole course of his life. शायद आपकी प्रार्थना उसके पूरे जीवन को बदल सकती Yeah. है। Actually, now we should really be thankful because sometimes we go away from God. हकीकत में हमने सच में धन्यवादित रहना है, क्योंकि कभी कभी हम प्रभु से बहुत दूर चले जाते हैं, कोई कोई क्षेत्र में. कोई कोई क्षेत्र में, And the Lord speaks to people और प्रभु लोगों से बात करते हैं and they begin to pray. और वो प्रार्थना करना शुरू They करते हैं। begin to call us. वो हमें पुकारना बुलाना शुरू करते They हैं, try to meet us. वो हमसे मिलने की कोशिश करते हैं। And in all this, और इस सब के बीच Holy Spirit is softening our heart पवित्र आत्मा हमारे हृदय को जो नरम बना रहा है, because He's a spirit who never gives up. क्योंकि वो ऐसी आत्मा है जो कभी हार नहीं मानती। वो तुझ पर हमेशा काम करते रहने वाला है आमेन, यीशु के नाम में. आमेन।